students, how are you? I hope all you are well. But today we are going to start our unit second chapter fifth, that is introduction to problem solving. First is, what is problem solving? Means in this chapter we are studying what is problem solving, then problem solving cycle, and then designing algorithm. Uh, Related to the problem solving cycle, there are some specific steps like analyzing a problem, designing algorithm using tools like flowchart and pseudocode, problem solving using decomposition. All these things we are going to read in this chapter. Okay, so firstly, introduction of this chapter is, but as you know कि computer is a dumb machine, right? Computer is a dumb machine, means computer cannot do anything alone without the software program. मीन्स कंप्यूटर को क्या चाहिए? सॉफ्टवेयर चाहिए, प्रोग्राम चाहिए, देन वो अपना वर्कआउट करेगा. ओके, एंड व्हाट इज़ अ program? Software. A software is a set of instruction or programs written to solve a particular problem. Okay, if the instructions are not correct, then the computer gives wrong result. Okay, so what we are writing a code is not a sufficient to solve a problem. Program must be planned before coding in any computer language available, and there are many activities to be done before and writing code. बेटा, अगर हम अपनी डेली लाइफ का भी एग्जांपल लेके चले कि हमारी डेली लाइफ में भी लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स होती हैं. अब प्रॉब्लम आएगी, कोई भी प्रॉब्लम, तो प्रॉब्लम हमारे पास क्या है? कोई भी कुछ भी हो सकता है, किसी भी टाइम पे भी प्रॉब्लम आ सकती है. ठीक है, मीन्स मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, मुझे कुछ किचन में जाना है और कुछ रेसिपी बनानी है, एंड कुछ डिश बनानी है, एंड आई डोंट नो अबाउट द रेसिपी. देन व्हाट आई डू? आई यूज़ द इंटरनेट, गूगल करूँगी, देन यूट्यूब पे अ लॉट ऑफ वीडियोज़ आर देयर, सर्च आउट द वीडियो एंड देन आई प्रोसेस इट. मीन्स मैंने प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकाला. इन द सेम वे कंप्यूटर में भी प्रॉब्लम्स होती हैं. प्रॉब्लम जो है ये हमारी जो डेली लाइफ प्रॉब्लम्स है उससे डिफरेंट है. यहाँ प्रॉब्लम किससे रिलेटेड है? सॉफ्टवेयर से. मीन्स आपके पास, आपने किसी स्कूल में आप देख लीजिए, या हम एग्जांपल लेके चलते हैं रेलवे का एग्जांपल लेके चलते हैं. तो रेलवे में क्या है? रिजर्वेशंस होती है, कौन सा बर्थ चाहिए, विंडो सीट चाहिए या स्लीपर सीट चाहिए, तत्काल में चाहिए, AC1 AC2, अ लॉट ऑफ थिंग्स आर देयर. तो वो कैसे मैनेज होता है? उसके लिए हम क्या करते हैं? एक प्रोग्राम को डेवलप करते हैं. ठीक है, तो प्रोग्राम मीन्स एक सॉफ्टवेयर को डेवलप करेंगे. अब जब एक प्रॉब्लम आई कि हमने इस चीज़ को, रिजर्वेशन जो है रेलवे का पूरा सॉफ्टवेयर क्रिएट करना है, तो आपने देखा कि रिजर्वेशन एक हमारे पास क्या आई? एक प्रॉब्लम आई, एक सॉफ्टवेयर हमने क्रिएट करना है. तो एक सॉफ्टवेयर क्रिएट करने के लिए हमें कौन कौन से एक्टिविटीज़ करनी पड़ेंगी बिफोर एंड आफ्टर राइटिंग द कोड. ओके, सो ना नेक्स्ट देखिए, there are various steps in problem solving cycle. And firstly, what is problem solving cycle? कि प्रोग्राम्स आर नॉट ए क्विक क्रिएशन. यू नो दैट कि प्रोग्राम्स हमारी जो है क्विक क्रिएशन नहीं है. इन ऑर्डर टू क्रिएट एफिशिएंट एंड इफेक्टिव प्रोग्राम वी शुड अडॉप्ट अ प्रॉपर प्रॉब्लम सॉल्विंग मैथोलॉजी एंड अप्रोप्रिएट टेक्निक्स. ओके, हमारे पास डिफरेंट मैथोलॉजीज होंगी, टेक्निक्स होगी. इनफैक्ट problem solving method follow a cycle that is called a problem solving cycle. So we are going to discuss the same here. Problem solving requires mainly 4 steps. First is analysis the problem. Then find solution and develop algorithm, then coding of the solution. Fourth is perform testing and debugging. After that implement and maintain. ये 4 जो हैं हमारे मेन रहते हैं. फाइनली जब ये कंप्लीट हो जाता है तो देन हम क्या करते हैं? उसको इम्प्लीमेंट करते हैं और मेंटेन करते हैं. देन ईच स्टेप कंटेन्स many sub step. Let us talk about these sub steps in order to understand the problem solving cycle. And what is the aim of the problem solving cycle? To create a working problem for the solution. The aim of a problem solving cycle is to create a working problem for the solution.
Now we are going to discuss about the sub steps of problem solving cycle to create a working problem jar. फर्स्ट हमारे पास आता है स्टेप है हमारे पास फर्स्ट एनालाइजिंग द प्रॉब्लम, एनालाइज द प्रॉब्लम. तो उसमें हमारे पास फर्स्ट पॉइंट आता है आपके पास अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम वेल. मीन्स कि इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम माइन्यूटली बिकॉज समटाइम द प्रॉब्लम इज नॉट दैट अपीयर्स बट समथिंग एल्स दैट इज कॉजिंग इट. मीन्स प्रॉब्लम जैसे दिखाई देती है वैसे होती नहीं है, इसलिए हमें क्या करना है, प्रॉब्लम को माइन्यूटली अंडरस्टैंड करना है. सेकेंड है एनालाइज द प्रॉब्लम. मीन्स दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टास्क कि प्रॉब्लम को हमें एनालाइज करना है. एज द आउटकम ऑफ दिस विल कन्वर्ट टू द सक्सेस ऑफ फाइनल सॉल्यूशन. जो एनालाइज करने के बाद हमारे पास आउटकम आएगा वो उस चीज़ को हम अपने माइंड में रख के अपने फाइनल सॉल्यूशन पे पहुंचेंगे. इसमें क्या क्या हमने एनालाइज करना है, आइडेंटिफाई प्रोसेसिंग कंपोनेंट, कौन कौन से कंपोनेंट्स हमें चाहिए, एंड आइडेंटिफाई द रिलेशनशिप अमंग प्रोसेसिंग कंपोनेंट्स. एक तो हमें कंपोनेंट्स देखना है एंड देन उनके रिलेशंस को फाइंड आउट करना है. ओके, नेक्स्ट है आपके पास डेवलपिंग द एल्गोरिथम. सेकेंड स्टेप आपके पास आता है डेवलपिंग द एल्गोरिथम. इसमें आपके पास क्या है कि थिंक ऑफ पॉसिबल सॉल्यूशंस. फर्स्ट इसमें क्या कहता है, सब स्टेप क्या है, थिंक ऑफ पॉसिबल सॉल्यूशन. मीन्स एज पर द प्रॉब्लम एनालिसिस, जैसे जैसे आपने प्रॉब्लम एनालाइज की है तो उसके हम पॉसिबल सॉल्यूशन को ट्राई करेंगे. एक प्रॉब्लम के आपको पता है अलॉट ऑफ सॉल्यूशंस हो सकते हैं, ठीक है. मीन्स डिफरेंट पर्सन्स अगर एक प्रॉब्लम के ऊपर वर्कआउट कर रहे हैं तो डिफरेंट पर्सन्स के डिफरेंट आइडिया होंगे और डिफरेंट सॉल्यूशंस होंगे. तो उसके बाद हम क्या करेंगे कि पॉसिबल जो सॉल्यूशन होगा उसके ऊपर हमने वर्कआउट करना है कि थिंक ऑफ डिफरेंट आइडियाज़ फॉर सॉल्यूशन, चेक योर आइडिया फॉर एप्टोनेस एंड फाइनली मोर अप्रोप्रिएट सॉल्यूशन को आप क्या करेंगे, एप्ट करेंगे. ओके, देन आता है फॉलो मॉड्यूलर अप्रोच वाइल डिजाइनिंग मोस्ट अप्रोप्रिएट सॉल्यूशन. मॉड्यूलर अप्रोच क्या कहती है आपके पास यहाँ पर कि हमारे पास जो कॉम्प्लेक्स बिग प्रॉब्लम्स होगी उनको हमने क्या करना है, डिवाइड करना है इनटू अ मैनी स्मॉलर एंड मोर मैनेजेबल एंड अंडरस्टैंडेबल मॉड्यूल्स में. जो बिग प्रॉब्लम है उसको हम किस में करेंगे, ब्रेक डाउन कर देंगे इंटू इवन अ सिमिलर लॉजिकल पार्ट्स. आप सिमिलर लॉजिकल पार्ट्स में डिवाइड कर दीजिए, या फिर हम उसको स्मॉलर पार्ट्स और जो मैनेज हो सके, अंडरस्टैंड हो सके एक चीज़ को, कंसेप्ट को, उसको हम क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे. तो डिज़ाइन द फाइनल प्रोग्राम बाय डिसाइडिंग स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन एंड ब्रेकिंग डाउन सॉल्यूशन इनटू अ सिंपल स्टेप्स. थर्ड पॉइंट क्या कहता है, आइडेंटिफाई ऑपरेशंस फॉर सॉल्यूशन. मीन्स जो हमने सॉल्यूशन के लिए अब क्या आइडेंटिफाई करना है, ऑपरेशंस को. किस लिए कि टू रिक्वायर्ड टू गेट द डिजायर्ड आउटपुट. तो प्रोग्राम कोडिंग इन्वॉल्व्स आइडेंटिफिकेशन ऑफ ऑपरेशंस फॉर विच required to get the desired output. One must decide about the minimum but simple operation required. Simple operations को हमें required करना है. तो हम क्या क्या आइडेंटिफाई करेंगे कि मिनिमम नंबर ऑफ द इनपुट्स रिक्वायर्ड, अर्थमेटिकल एंड लॉजिकल ऑपरेशंस हो जाएंगे, क्या क्या इनपुट होंगी, लॉजिकल ऑपरेशंस होंगी, एंड सिंपल एंड एफिशिएंट डाटा स्ट्रक्चर सूटिंग द नीड. थर्ड स्टेप आता है आपके पास कोडिंग. कोडिंग मीन्स कि कोड प्रोग्राम यूजिंग अप्रोप्रिएट कंट्रोल स्ट्रक्चर्स. कंट्रोल स्ट्रक्चर्स आगे आएंगे, आपको बताएंगे. तो क्या कह रहा है कि हमने क्या करना है, जो अप्रोप्रिएट कंट्रोल स्ट्रक्चर्स को यूज़ करके अपने प्रोग्राम को राइट करना है. ओके, कोडिंग क्या है कि एक टेक्निकल वर्ड है फॉर राइटिंग द प्रोग्राम. जब हम अपना प्रोग्राम राइट करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, कोडिंग. कोडिंग जो होगी स्टेप बाय स्टेप होगी. दिस स्टेप इज़ टू ट्रांसलेट द एल्गोरिथम इनटू अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. हम क्या राइट करते हैं, जो स्टेप 2 में एल्गोरिथम राइट किया उसके बाद हमने क्या करेंगे, उसको राइट करेंगे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में बाय यूजिंग मोस्ट अप्रोप्रिएट कंट्रोल स्ट्रक्चर आउट ऑफ अवेलेबल ऑप्शंस. जो हमारे पास, जैसे पाइथन हमारे लैंग्वेज हम यूज़ करने जा रहे हैं इस बार क्लास 11th में, तो हमारे पास जो जो कंट्रोल स्ट्रक्चर्स होंगे उनको यूज़ करके हम अपना प्रोग्राम को राइट करेंगे. ओके, नेक्स्ट आता है टेस्टिंग एंड डीबगिंग. मीन्स आपने अपना प्रोग्राम राइट कर दिया, कोडिंग आपने राइट कर दी. अब सबसे पहले क्या करना है हमने उसको, अब टेस्टिंग एंड डीबगिंग. मीन्स टेस्टिंग इज द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग एरर्स इन अ प्रोग्राम एंड डीबगिंग इज द प्रोसेस ऑफ करेक्टिंग
एरर्स फाउंड ड्यूरिंग द टेस्टिंग प्रोसेस। तो 10 इन दिस फेज क्या क्या हो गया, एक तो फाइंड करना है हमने एरर्स को एंड देन करेक्ट करना है। ओके, टेस्ट, फाइंड करना और डिबग, करेक्ट करना। आफ्टर दैट कंप्लीट योर डॉक्यूमेंटेशन। मीन्स डॉक्यूमेंटेशन किस लिए ज़रूरत है कि हमने इस प्रोग्राम को क्रिएट कर लिया, फर्दर किसी भी अनदर पर्सन और प्रोग्रामर को जब इसकी अंडरस्टैंड करना पड़ेगी प्रोग्राम क्या है, कोई न्यू मेंबर ज्वाइन कर लेता है या हम छोड़ देते हैं उस प्रोग्राम को, सपोज एक कंपनी को हमने छोड़ दिया, ठीक है, बट हमने सॉफ्टवेयर क्रिएट किया, तो उसके लिए डॉक्यूमेंटेशन होना चाहिए कि कोई न्यू पर्सन जब उसको हैंडल करेगा तो उसको समझ आना चाहिए कि हमने कहाँ पर कौन सी चीज़ों को यूज़ किया। मीन्स कंप्लीट डिटेल डिस्क्रिप्शन होगी व्हाट द प्रोग्राम डज एंड हाउ टू यूज़ द प्रोग्राम। ओके, नेक्स्ट क्या आता है, इम्प्लीमेंट योर कोड। आपने अब क्या करना है, अपने कोड को इम्प्लीमेंट करना है और मेंटेन करना है। तो इम्प्लीमेंट योर कोड फॉर एक्चुअल यूज़। हमने टेस्टिंग कर दी, डीबगिंग कर दी, डॉक्यूमेंटेशन कर दिए, तब हमारे पास कौन सा प्रोसेस आता है, इम्प्लीमेंट। हम क्या करेंगे, इम्प्लीमेंट योर प्रोग्राम फॉर एक्चुअल यूज ऑन साइट। मीन्स जो रियल यूज़र होगा, जिसको जो रिक्वायरमेंट थी वो अब उसको यूज़ करेगा। फिर मेंटेन योर प्रोग्राम। मीन्स इसमें क्या इन्वॉल्व होता है कि मॉडिफाई द प्रोग्राम टू रिमूव प्रीवियसली अनडिटेक्टेड एरर्स। जो हमने अनडिटेक्टेड एरर्स है उनको हम इसमें मेंटेन करेंगे, उनको क्या करेंगे, रेक्टिफाई करेंगे। एंड टू एनहांस द प्रोग्राम विद डिफरेंट फीचर्स और फंक्शनलिटी एंड कीप द प्रोग्राम अप टू डेट एज गवर्नमेंट रेगुलेशन और कंपनी पॉलिसीज चेंजेस। ओके बेटा, ये तो था कंप्लीट आपका प्रॉब्लम सॉल्विंग साइकिल। आफ्टर दैट आपके पास आता है प्रॉब्लम सॉल्विंग यूजिंग डीकम्पोजिशन। फर्स्टली व्हाट इज द डीकम्पोजिशन। डीकम्पोजिशन क्या है, प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग डाउन अ बिग और कम्प्लेक्स प्रॉब्लम इनटू अ सेट ऑफ स्मॉलर सब प्रोसेसेस इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड अ प्रॉब्लम। एक बिग टास्क को हम क्या करेंगे, स्मॉल स्मॉल प्रॉब्लम्स में डिवाइड कर देंगे। सी, हमारे पास एक बिग प्रॉब्लम है, उसको हमने फिर ब्रेक डाउन कर दिया स्मॉलर पार्ट्स में, देन उस पार्ट को भी सब पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। दिस प्रोसेस इज नोन एज द डीकम्पोजिशन। मीन्स इसमें क्या करते हैं कि डिवाइडिंग अ टास्क इनटू अ सीक्वेंस ऑफ सबटास्क एंड आइडेंटिफाइंग एलिमेंट और पार्ट्स ऑफ कॉम्प्लेक्स सबसिस्टम। ठीक है बेटा, अगर हम लेके चले कि हम कोई एग्जाम्पल ही लेके चलते हैं, लाइक हम कंप्यूटर साइंस में ही देखते हैं, ठीक है। अब हम कोई सॉफ्टवेयर बनाने जा रहे हैं, सॉफ्टवेयर बनाने के लिए अभी हमने जो जो देखा पीछे प्रॉब्लम सॉल्विंग साइकिल में कौन कौन से टास्क थे, तो उनको हमने एक प्रॉब्लम लेके चले और उनको डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड किया। डिवाइड करने के बाद हमारे पास लास्ट में मेंटेन और हमने क्या किया था, मेंटेन और इम्प्लीमेंट किया था। मीन्स सबसे पहले हम प्रॉब्लम को एनालाइज करते हैं, फिर हमने उसको सॉल्यूशन निकाले, एल्गोरिथम लिखी, कोडिंग किया, फिर टेस्टिंग एंड डिबगिंग एंड देन मेंटेन। मीन्स प्रॉब्लम को हमने डिवाइड कर दिया। लाइक अगर कोई ब्रिज कंस्ट्रक्ट करने जा रहे हैं, इंजीनियर है, ठीक है, तो वो क्या करेगा, पहले वो देखेगा कि साइट की कंडीशंस क्या हैं, कौन कौन से टेक्नोलॉजीज अवेलेबल हैं, कौन सी टेक्निकल कैपेबिलिटी ऑफ द कॉन्ट्रैक्टर है, फाउंडेशन एक्सेट्रा एवरीथिंग। अगर हम बात करें कि हमने कोई एक ऐसे राइट करना है, ठीक है, उसको भी हम क्या करते हैं, स्मॉलर टास्क में डिवाइड कर देते हैं। लाइक डेवलपिंग अ थीसिस, गैदरिंग एविडेंस, क्रिएटिंग बाइब्लियोग्राफी पेजेस, लाइक दिस। ओके बेटा, इन द सेम वे हम क्या करते हैं, बिग प्रॉब्लम को डीकम्पोज करके अपने नी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालते हैं इजी वे में। ओके, देन नीड क्या है डीकम्पोजिशन की। जब हम एक लार्ज प्रॉब्लम को स्मॉल प्रॉब्लम्स में डिवाइड कर रहे हैं तो हमें क्या, एक छोटा काम है बेटा, मैं यही कहती हूँ कि मैं एक केक बनाने जा रही हूँ, ठीक है। केक बनाने के लिए भी डिफरेंट डिफरेंट्स आपके पास टास्क होंगे, पहले मैं फर्स्ट स्टेप करूँगी, सेकंड स्टेप, थर्ड स्टेप, फोर्थ स्टेप, दिस इज़ द इजी वे, ठीक है। जब हमारे पास एक प्रोग्राम 500 लाइंस का ना हो के 1000 लाइंस का हो, देन हम क्या करेंगे, सपोज हमने ये पार्ट्स बना दिए, ठीक है। अब इस पार्ट्स में अगर ये 1000 का है तो सपोज हमारे पास 50-50 लाइन का हम एक प्रोग्राम को डिवाइड कर देते हैं, तो हमें इजी हो जाता है उस प्रॉब्लम को सॉल्यूशन निकालने में। अगर कहीं प्रॉब्लम आती है, सपोज हमने इसको प्रॉब्लम को डिवाइड कर दिया डिफरेंट डिफरेंट सब प्रॉब्लम्स में, अगर इस प्रॉब्लम में कोई
एरर फाइंड आउट होता है तो हम इसी जो 50 और 100 लाइन का हमारे पास प्रोग्राम होगा हम उसको रेक्टिफाई कर सकते हैं इजीली से। ओके, तो ये तो था हमारे पास प्रॉब्लम सॉल्विंग यूजिंग डिकम्पोजिशन। उसके बाद आता है बेटा हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक एल्गोरिथम, डिजाइनिंग एल्गोरिथम। हम एल्गोरिथम कैसे राइट करते हैं, ठीक है। अभी हमने पढ़ा कि प्रॉब्लम सॉल्विंग में हमारा सेकंड स्टेप होता है कि राइट द एल्गोरिथम। कंप्यूटर जब प्रॉब्लम्स को सॉल्व करता है बाय अ सिंपल और स्मॉल स्टेप, देन वो किसको एक्सप्रेस करता है, कंप्यूटर इंस्ट्रक्शंस में, ठीक है। मीन्स अ सेट ऑफ रूल्स दैट डिफाइन हाउ अ पर्टिकुलर प्रॉब्लम कैन बी सॉल्व इन अ फाइनाइट नंबर ऑफ स्टेप इज नोन एज algorithm. An algorithm is composite of set of finite steps each of which require one or more operations. जब हम एल्गोरिथम को राइट करते हैं क्या है, सेट ऑफ रूल्स हैं, कुछ रूल्स होंगे जो हमारी प्रॉब्लम को क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, किसमें, फाइनाइट नंबर में। मीन्स उसकी जब स्टार्ट हुआ है तो उसका एंड भी होगा, तो ये होगा फाइनाइट नंबर। ओके, फाइनाइट नंबर ऑफ स्टेप्स में जब हम एक प्रॉब्लम को राइट करते हैं विद द हेल्प ऑफ सेट ऑफ सम रूल्स, देन इट इज कॉल्ड अ एल्गोरिथम। ओके, अब जब हमने इसको रूल जो राइट किए, मीन्स कोई प्रॉब्लम राइट कर रहे हैं इन वे ऑफ एल्गोरिथम, तो वहाँ हमें कुछ ऑपरेशंस चाहिए होंगे, उन ऑपरेशन के ऊपर कुछ कंस्ट्रेंट होंगे, और वो कौन कौन से ऑपरेशन होंगे कि ईच ऑपरेशन मस्ट बी डेफिनेट, मीन्स इट मस्ट बी क्लियरली डिफाइंड व्हाट शुड बी डन। ये नहीं होना चाहिए कि अगर हम 6 डिवाइड बाई 10 कर 0 कर रहे हैं तो ये तो इनफाइनाइट आंसर आ गया, ठीक है। ऐड कर रहे हैं 3, ऐड करो 3 और प्लस ए, व्हाट इज ए, पता ही नहीं। तो ये क्या है कि हमारा क्या होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए, डेफिनेट होना चाहिए। ईच ऑपरेशन मस्ट बी इफेक्टिव, मीन्स ईच स्टेप मस्ट बी सच दैट इट कैन बी डन यूजिंग पेंसिल और पेपर इन अ फाइनाइट अमाउंट ऑफ टाइम। ओके, कि इफ़ेक्टिव होना चाहिए कोई भी ऑपरेशन जब हम यूज़ कर रहे हैं। ये नहीं है कि हम इंटीजर यूज़ कर रहे हैं तो हमारा आंसर किस में आ रहा है, डेसिमल में आ रहा है, ठीक है। वट एवर वी ऑपरेशन आर गोइंग टू यूज दैट मस्ट बी द इफेक्टिव। ईच ऑपरेशन मस्ट बी फाइनाइट, मीन्स अगर स्टार्ट किया है तो वो टर्मिनेट भी होगा। ओके, नेक्स्ट इज करेक्टरिस्टिक्स ऑफ एल्गोरिथम। अब एल्गोरिथम की करेक्टरिस्टिक्स क्या है, प्रिसिशन, मीन्स एल्गोरिथम शुड बी प्रेसी, इट्स स्टेप शुड बी प्रेसली डिफाइंड, ब्रीफ होने चाहिए, स्मॉल होने चाहिए, समझ आने चाहिए। ओके, ये नहीं है कि आप कुछ भी लिखते रहो। सेकेंड इज यूनिकनेस, मीन्स एवरी स्टेप शुड बी यूनिक कंट्रीब्यूट टू द एल्गोरिथम। मीन्स क्या है कि जो रिजल्ट होगा ऑफ ईच स्टेप इज यूनिक, इट इज़ ओनली डिपेंडेंट ऑन द इनपुट एंड द रिजल्ट ऑफ द प्रीसीडिंग स्टेप्स। जो पहले वाले स्टेप्स होंगे उसके ऊपर उसका डिपेंडेंट होगा। फाइनाइटनेस मीन्स मस्ट बी फाइनाइट होना चाहिए, स्टेप्स रिपीट नहीं करने चाहिए, अगर हमने स्टार्ट किया और वो क्या होना चाहिए, एंड होना चाहिए। Input, an algorithm requires a specific type of input to work upon. And then output, an algorithm produce output as per the stated objectives and input has been received. जो input गई हैं उसके according आपका output proper होना चाहिए. Then what are the components of the algorithm? Simple, input, processing, output. Input उसको चाहिए एल्गोरिथम राइट किया है तो ठीक है, उसके ऊपर प्रोसेसिंग होगी और देन हमारा आउटपुट जो एक्सपेक्टेड होगा वो आएगा। ओके बेटा, बेटा अब आपने देखा कि ये हमने किया अबाउट द एल्गोरिथम, ठीक है। मीन्स एक प्रोग्राम जो है इज अ एक्सप्रेशन ऑफ एल्गोरिथम इन अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। सबसे पहले हम उसको प्लानिंग करके चलते हैं कि क्या क्या हमने मीन्स स्टेप्स राइट कर लिए, क्या क्या वर्क करना है, ठीक है। जो हमारे प्रोग्राम का सक्सेस होगा वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, एल्गोरिथम पे। ओके, जो भी हम लॉजिक एल्गोरिथम में लगाएंगे वही हम कोडिंग राइट करेंगे। ओके, अब एल्गोरिथम के लिए एक हमारे पास मेथड है जिसको हम अपने प्रॉब्लम को ग्राफिकल मेथड में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, वो क्या है, हमारा फ्लो चार्ट। मीन्स फ्लो चार्ट क्या है, पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम। जो हमारे पास प्रॉब्लम है उसको हमने स्टेप बाय स्टेप क्या करना है, पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन देनी है।
मीन्स जो हमने एल्गोरिथम में स्टेप्स राइट किए हैं उन्हीं स्टेप्स को हम क्या करेंगे, एक पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन दे देंगे, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन दे देंगे। मीन्स कुछ हम सिंबल्स यूज़ करेंगे, उस सिंबल के थ्रू हम क्या बनाएंगे, एक अपना फ्लो चार्ट। ओके, लाइक आप पढ़ते हो जैसे नाउन है, ठीक है, हम ऐसे बनाते हैं नाउन, फिर उसका एक वेब चार्ट बना देते हैं, उसके टाइप्स इतने हैं, उस टाइप के आगे सब टाइप्स इतने हैं, लाइक दिस। ओके, बट हमारे पास यहाँ कुछ सिंबल्स हैं जो हम देखेंगे कौन कौन से हैं। लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट इज दिस ओवल शेप, ठीक है, ये किस को रिप्रेजेंट करता है, स्टार्ट और स्टॉप। जब हम अपना एल्गोरिथम या प्रोग्राम को राइट करेंगे, स्टार्ट और स्टॉप लगाएंगे, तो हम व्हाट वी आर यूजिंग, ओवल शेप। ओके, दीज एरोज ये हमारे क्या करती हैं, फ्लो ऑफ कंट्रोल सिंबल्स। जो लाइन हमारे पास है, देखो स्टार्ट आया, स्टार्ट के बाद क्या किया, फिर हमने प्रोसेसिंग की, डिसीजन किया, मीन्स जो स्टेप बाय स्टेप है उसको डेटा को फ्लो करना। इनपुट आउटपुट जहाँ देंगे वहाँ हम क्या यूज़ कर लेंगे, पैरेललोग्राम। प्रोसेसिंग के लिए हम क्या यूज़ करेंगे, रेक्टेंगल। डिसीजन लेना है तो हम क्या यूज़ करेंगे, डायमंड शेप। कनेक्टर है जो हमारी फ्लो ऑफ लाइंस को क्या करेगा, कनेक्ट करेगा। एनोटेशन क्या है कि एक फ्लो चार्ट को दूसरे फ्लो चार्ट से कनेक्ट करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, एनोटेशन सिंबल। ओके, दिस इज द फ्लो चार्ट एंड with the help of this symbol we can make a flow chart of any algorithm. Okay, next है rules for writing a algorithm. But whenever we are going to write the algorithm, we should use that language that is very and very close enough to the programming language in which the program are to be written. Means आप suppose अगर हम यहाँ पर पाइथन पढ़ने जा रहे हैं तो हमें पाइथन में अगर प्रोग्राम बनाने जा रहे हैं तो हम एल्गोरिथम किस में राइट करेंगे, प्रोग्राम पाइथन में ही राइट करेंगे। ठीक है, तो उसके लिए कौन कौन से रूल्स होने चाहिए। सबसे पहले आता है आपके पास आइडेंटिफायर्स। What are the identifiers? Identifiers are the names given to various component of a program by the programmers. Means हमारे पास वेरिएबल्स जो यूज़ करेंगे, वेरिएबल्स आएंगे आपके पास, कीवर्ड्स हैं। ओके, a lot of things are there that we are going to use in the Python program and that all are called the identifiers. Okay, वेरिएबल्स क्या करते हैं, वैल्यूज़ को होल्ड करते हैं। हम फंक्शंस यूज़ करेंगे, मॉड्यूल्स यूज़ करेंगे, ऑल आर दीज थिंग्स आर कॉल्ड द आइडेंटिफायर। देन आता है असाइनमेंट, मीन्स assigning the value to a variable. How we can use variable, then this symbol and then expression. means a में हमने 10 की वैल्यू असाइन की, कैसे लिखते हैं, a इज इक्वल टू 10 ना, तो हम यहाँ इक्वल टू ना लगा के हम एरो साइन लगाएंगे। देन हमारे पास सीक्वेंस स्टेटमेंट्स आती हैं। सीक्वेंस स्टेटमेंट्स मीन्स जो हमारे पास स्टेप ऑफ एल्गोरिथम होंगी, स्टेप जो हमने एल्गोरिथम के स्टेप्स राइट किए हैं उनको हम क्या कहेंगे, सीक्वेंस। मीन्स जो हमारा मैंने अभी बताया, हम एल्गोरिथम राइट कर रहे हैं तो स्टेप हो गए, स्टेप कंटिन्यूस स्टेप। मीन्स इसके बाद हमने ये करना है, इसके बाद ये करेंगे, इसके बाद ये करेंगे, तो दैट इज़ द सीक्वेंस, फॉलो ऑफ द सीक्वेंस, जैसे फ्लो चार्ट में मैंने अभी बताया। आफ्टर दैट आपके पास क्या आती हैं, सिलेक्शन, सिलेक्शन एंड कंडीशनल स्टेटमेंट्स। ओके, इसमें सिलेक्शन और कंडीशनल स्टेटमेंट में क्या होता है कि इफ स्टेटमेंट और इफ और एल्स स्टेटमेंट। ओके, टू स्टेटमेंट्स आती हैं। मीन्स इफ में कंडीशन को देखेंगे, कंडीशन अगर ट्रू है तो देन वी आर गोइंग टू दिस स्टेटमेंट, मीन्स ब्लॉक 1 में जो स्टेटमेंट्स होंगी उसको एग्जीक्यूट करेंगे। अदरवाइज अगर कंडीशन हमारी फॉल्स है तो हम नॉर्मल स्टेटमेंट्स पे जंप कर जाएंगे। सी देखो, ये कंडीशन लगाई, if the condition is true then we are going to execute the if block statements, otherwise false है तो हम क्या करेंगे, नॉर्मल स्टेटमेंट्स में आ जाएंगे। if else में क्या होता है कि हमारे पास कंडीशन आ गई either true और false, मीन्स ट्रू है तो ट्रू ब्लॉक स्टेटमेंट्स को यूज़ करेंगे, फॉल्स है तो फॉल्स वाली ब्लॉक स्टेटमेंट को यूज़ करेंगे। सी इफ स्टेटमेंट, if statement, else statement. Okay, these are the selection and conditional statement. नेक्स्ट आपके पास आती हैं रिपीटिशन और लूपिंग स्टेटमेंट। बेटा क्या होता है
कि जब हम अपना प्रोग्राम राइट करते हैं ना, कुछ ऐसी हमारे पास स्टेटमेंट्स होती हैं जिनको हम बार बार एग्जीक्यूट करते जाएंगे, मीन्स रिपीट होती जाएंगी। कुछ स्टेटमेंट्स ऐसी होती हैं जिनको हमने क्या करना है, रिपीट करते जाना है। वो किसके ऊपर डिपेंड करेंगे, हमारी कंडीशन के ऊपर। सो हमारे पास यहाँ पर 2 टाइप्स के लूप यूज होंगे, फॉर लूप एंड वाइल लूप। फॉर लूप स्टेटमेंट में क्या होंगे, जब हम अपना प्रोग्राम स्टार्ट करेंगे, ठीक है, कंडीशन पहले फॉर लूप में जो स्टेटमेंट है पहले कंडीशन बाद में चेक होगी, इसमें पहले ही लूप में हम एंटर कर जाएंगे। बट वाइल में क्या होगा, पहले हमारी कंडीशन टेस्ट होगी, देन हम लूप की स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करेंगे। ओके, ये हम आगे फर्दर लेसन्स में रीड आउट करेंगे। ओके बेटा, नेक्स्ट हमारे पास है सूडो कोड। सूडो कोड मीन्स, पहले तो हमने पढ़ा एल्गोरिथम। एल्गोरिथम को राइट करने के लिए हमारे पास 2 थिंग्स थी। फर्स्ट इज फ्लो चार्ट, जो उसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन था। अब हमारे पास सूडो कोड आता है। सूडो कोड इज अ इनफॉर्मल लैंग्वेज दैट हेल्प प्रोग्रामर डिस्क्राइब स्टेप ऑफ प्रोग्राम सॉल्यूशन विदाउट यूजिंग एनी प्रोग्राम लैंग्वेज। दिस इज अ इनफॉर्मल लैंग्वेज। हम जो स्टेप्स राइट करेंगे वो क्या करेंगे, विदाउट यूजिंग एनी प्रोग्राम लैंग्वेज सिंटेक्स। Like if student mark is greater than or equal to 50, then displayed passed, else display failed। ठीक है, अगर हम यही उसमें राइट करते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, तो वो करेगा इफ़ स्टूडेंट के मार्क्स ले सकते हैं SM, ठीक है, इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 50, देन प्रिंट आएगा वहाँ पर पास, एंड एल्स प्रिंट फेल्ड। डिस्प्ले की जगह वहाँ क्या आएगा, प्रिंट। मीन्स देन हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज़ करेंगे, बट सूडो कोड में हम प्रोग्रामिंग वर्ड्स को यूज़ नहीं करेंगे। ओके, देन व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ द सूडो कोड। इट इज़ ईजी टू अंडरस्टैंड, क्योंकि ये हमारी लैंग्वेज में ही लिखा गया है, कोई भी हमने सिंटेक्स यूज़ नहीं किया प्रोग्राम का, तो इसलिए ये ईजी है। जो सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शन है वो हाईलाइट्स हो जाएंगी। एल्गोरिथम हमारे लिए इजीली विजिबल हो जाएगा थ्रू अ सूडो कोड, एंड सूडो कोड को हम इजीली से मॉडिफाइड कर सकते हैं, क्योंकि वो किसी के ऊपर फिर डिपेंड नहीं होता। एंड व्हाट आर द डिसएडवांटेजेस ऑफ सूडो कोड। जैसे हमारे पास एल्गोरिथम का फ्लो चार्ट में बना सकते हैं, ऐसे कोई विजुअल टूल नहीं है, और सूडो कोड को कोई एक्सेप्ट नहीं करता। ये सिर्फ पेन पेपर पे ही टेस्ट हो सकता है, और दिस इज द इनफॉर्मल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द एल्गोरिथम। ओके, सो सूडो कोड को सिर्फ एक इनफॉर्मल लैंग्वेज के लिए ही हम यूज़ कर सकते हैं। ओके, और यहाँ पर कोई भी जैसे इंस्ट्रक्शंस हैं कि हमने अपर केस में राइट करना है, लोअर केस में राइट करना है, वट एवर वी वॉन्ट वी कैन राइट लाइक दैट। ओके, बट इसमें थोड़ा सा ये रहता है कि जो इंस्ट्रक्शंस होती हैं वो हम राइट करते हैं अपर केस में, और वेरिएबल जो होती हैं वो हम राइट करते हैं लोअर केस में, एंड मैसेजेस ऑल्सो राइट इन द सेंटेंस केस। ओके, जो हम नॉर्मली यूज़ करेंगे। आफ्टर दैट हमारे पास आता है एल्गोरिथम। राइट कर ली हमने, हम एल्गोरिथम को कैसे वेरीफाई कर सकते हैं। वेरीफाइंग ऑफ एन एल्गोरिथम मीन्स टू इंश्योर दैट द एल्गोरिथम इज वर्किंग एज इंटेंडेड। मीन्स जब हमने एल्गोरिथम को राइट किया है, जिस पर्पस के लिए राइट किया है एल्गोरिथम को, वो हमारा वर्क हुआ है कि नहीं हुआ, हम कैसे उसको वेरीफाई करेंगे। ठीक है, सपोज हम 2 नंबर्स को ऐड करने के लिए एक एल्गोरिथम बनाया, बट जब हमने उसको इनपुट दिया तो उसने क्या किया, प्रोडक्ट किया। तो हमें क्या चेक करना है कि जिस पर्पस के लिए हमने एल्गोरिथम राइट किया है, क्या वो पर्पस हमारा फुलफिल हुआ या नहीं। तो हमने क्या करना है, उसको टेस्ट करना है। हाउ, विद द हेल्प ऑफ सैम्पल इनपुट्स फॉर विच वी नो द आउटपुट। सपोज मुझे चाहिए 2 + 3, मुझे पता है 5 आएगा, मैंने प्लस के लिए एल्गोरिथम राइट की, बट मैंने प्लस की जगह मल्टीप्लाई का साइन लगा दिया तो 6 आ गया। तो हम ऐसे सैम्पल इनपुट्स के थ्रू हम क्या करेंगे, अपनी एल्गोरिथम को वेरीफाई करेंगे। ओके, if the expected output matched with the output produced by the algorithm, then the algorithm is are verified। okay, अब एल्गोरिथम वेरीफाई करने के लिए हमारे पास कौन सा मेथड हम यूज़ कर सकते हैं, ड्राई रन मेथड। ठीक है, ड्राई रन मेथड इज़ रियली हेल्पफुल, बट इट इज़ नॉट
जो हमने पीछे किया कि पेन पेपर के लिए, दिस इज़ ओनली फॉर द स्मॉल प्रोग्राम्स, बट अगर हमें लार्ज प्रोग्राम्स को रन वेरीफाई करना है, एल्गोरिथम को वेरीफाई करना है, तो देन वी यूज़ द run write method. And what is the run write method? It is the process of a programmer manually working through their code to trace the value of variables. Okay, सपोज मैंने एक एल्गोरिथम लिखती हूँ कि मैंने स्टार्ट की एल्गोरिथम, उसमें मैंने रीड किया टू नंबर्स को लाइक ए और बी, और मैंने इनको क्या किया, सम किया ए प्लस बी, ठीक है। तो वो क्या कह रहा है कि इनको फिर हम क्या करेंगे, प्रिंट कर देंगे सम और देन एंड। मैंने ए और बी को 2 और 3 लिया, 2 + 3 5, देन दिस करेक्ट। वो क्या करेगा, पेन पेपर के ऊपर इसको सॉल्व करेंगे। ओके, इसमें कोई सॉफ्टवेयर इन्वॉल्व नहीं होता। तो प्रोग्राम क्या करता है ड्राई रन मेथड के लिए कि जो उसने कोड राइट किया है उसका प्रिंट आउट लेगा, एंड programmer would sit down with the pen or paper and manually follow the value of variable to check it was used and updated as expected. Okay, क्या हमने जो भी इनपुट्स के थ्रू आउटपुट आना चाहिए क्या वो ओके है या नहीं है। What are the characteristics of a dry run? कि इट इज़ अ कैरिड आउट ड्यूरिंग डिज़ाइन, इम्प्लीमेंटेशन, टेस्टिंग और मेंटेनेंस। किसी भी टाइम हम इसको चेक कर सकते हैं। इट इज़ यूज टू आइडेंटिफाई द लॉजिकल एरर्स इन अ कोड एंड इट कैन नॉट फाइंड द एग्जीक्यूशन एरर इन अ कोड। सिर्फ लॉजिकल एरर को फाइंड करता है, सिर्फ जो एग्जीक्यूशन के टाइम पर एरर्स आएंगे उनको फाइंड आउट नहीं करता है, क्योंकि हम सिर्फ पेन पेपर्स के साथ वर्कआउट कर रहे हैं। एग्जीक्यूशन तो कंपाइलर या इंटरप्रेटर करेगा, जो भी हम अपनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को यूज़ करेंगे। ओके, तो इसके लिए एक और ड्राई रन क्या करता है, टेबल यूज़ करता है, ट्रेस टेबल। ठीक है, वो क्या करेगा, ट्रेस टेबल लेके चलेगा, जिसमें वो क्या करेगा, ईच लाइन ऑफ द कोड इज सीन ऑन द वैल्यू ऑफ वेरिएबल ऑफ द एल्गोरिथम, कि उस कोड की वैल्यूज़ को लेके चलेगा। लाइक आप एग्जांपल देखिए कि मेरे पास एक एग्जांपल है, दैट इज़ मेरे पास ये कोड आया नम 0, टोटल भी 0 है, फोर लूप लगा हुआ है, i 1 2 3 चलेगा, एंड 4j 1 2 3। अब आप देखिए कि मेरे पास यहाँ पर जो टर्म यूज़ हुई 4i मीन्स i का लूप चला पहले, फिर इसी के अंदर ये स्टेटमेंट्स आ रही हैं कि 4j में क्या आया 1 2 3, नम एक वेरिएबल लिया जिसमें मैंने क्या असाइन किया j इंटू आई, टोटल में क्या असाइन किया टोटल प्लस नम। अब मैंने लिया कि मैंने आई लिया j, देन नम में क्या है j इंटू आई, देन टोटल, टोटल प्लस नम। तो एंड ऑफ द इनर फॉर लूप एंड एंड ऑफ द आउटर फॉर लूप। ओके, अब मैंने पहले चलती हूँ आई के लिए, आई क्या है 1, फिर इस लाइन पे जंप किया उसने, जे को लिया 1, हमने देखा कि नम को हमने 0, टोटल को 0 लिया था। अब नम की वैल्यू क्या हो जाएगी, जे क्या है आपके पास 1 इंटू 1 1, टोटल क्या हो गया, टोटल 0 पहले है, 0 + 1 1। ओके, देन अभी हमारा यही इनर लूप चल रहा है, जे 1 के लिए हो गया, अब 2 के लिए चलेगा। जे क्या है आपके पास 2, आई क्या है 1, 2 1 ज़ा 2, 2 प्लस अब 2 आ गया, टोटल क्या हमारे पास 1, 1 + 2 3। ओके, अभी भी हमारा इनर लूप फिनिश नहीं हुआ, 3 के लिए चलेगा, 3 इंटू 1 3 एंड 3 + 3 6। लाइक दिस आपके पास ये आउटपुट आएगा और आंसर क्या आ जाएगा 36। ओके, इस टाइप में वो क्या करते हैं, वैल्यू को ट्रेस करते हैं विद द हेल्प ऑफ ड्राई रन मेथड एंड मेकिंग अ ट्रेस टेबल। ओके, ये आपके पास क्वेश्चंस आ जाते हैं। देन नेक्स्ट आता है आपके पास टॉपिक कंपेयरिंग एल्गोरिथम। दिस इज द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, मीन्स कंपेयरिंग एल्गोरिथम। बेटा कोई भी हम मार्केट में भी कुछ भी लेने जाते हैं तो हम कंपेयरिंग करते हैं। हम कार लेने चाहते हैं तब भी हम देखेंगे कि कौन सी कार लेनी है, कौन सी कार स्पीड ज़्यादा लेती है, हम कंसिडर करते हैं उसकी स्पीड को, उसका फ्यूल कंजप्शन। इन द सेम वे हम एल्गोरिथम में भी क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे चीज़ों को। कैसे करेंगे, विद द हेल्प ऑफ वो कितनी टाइम लेती है, कितने उसको रिसोर्सेज चाहिए। ठीक है, तो फर्स्ट आता है उसमें स्पेस वाइज एफिशिएंसी। मीन्स स्पेस क्या हो गया, हाउ मच अमाउंट ऑफ मेमोरी
दैट एल्गोरिथम विल टेक अप बिफोर इट टर्मिनेट्स होने से पहले वो कितना मेमोरी में स्पेस लेगी, ये हम कंसिडर करके चलेंगे। मीन्स वी कंसिडर द अमाउंट ऑफ डाटा द एल्गोरिथम यूजेस वाइल रनिंग, कितना डेटा वो, कितनी मेमोरी, कितना स्पेस उस एल्गोरिथम को टर्मिनेट होने के लिए चाहिए। देन आता है टाइम वाइज एफिशिएंसी, मीन्स हाउ मच टाइम द एल्गोरिथम टेक्स टू कंप्लीट। ये किसके ऊपर डिपेंड करेगा कि उसको कितनी रैम अवेलेबल है, कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज उसने यूज़ की है, कौन सा हार्डवेयर प्लेटफॉर्म्स है, लाइक दिस। ओके, so with this we have to end of this chapter. Okay, I hope you understand about these small topics. This is very and very easy chapter beta, just go through it with the book and with the ppt. Thank you.